ادھر سر جی ادھر دیکھو 5-7 منٹ ہے. بیگ بیر لے ہیں بیگ سارا گیا خراب کریں گے. ہاں ایسے ہی جیسے شہیر بتا رہا ہے ایسے ہی آگ لگے گی پھر چلے گا اور نہیں گرتا یار سردی نہ ڈھس کم میں تو سیدھا نظر آئے گا. پیچھے چلاؤ جا کے جل گیا جل گیا جل گیا جل گیا جل گیا. چلے چلے خیر ہے پکڑے رکھیے پکڑے بنا لیں فوٹو بنا لیں مزہ نہیں ہے نہیں چلے بڑھاؤ جی بڑھاؤ چلے بڑھاؤ بڑھاؤ اسلامی ملک رہے گا اسلامی اسلامی دستور بھی ہوگا اسلامی. ایک منٹ نہیں کاٹنا نہیں سامنے کئی ہم سب کہیں گے پھر چلو جی ایک منٹ بتائیں کٹ دے جی. چلو ہاتھ رکھو نا سارے ہاتھ رکھو سامنے سامنے سر چلا جی بسم اللہ کرو تو سرا چلو جی آگے کریں آگے ہو جی ہو گیا جی انتظار ہے نا کسی کا بھی نہیں انتظار آگے آگے دیکھیے آپ سارے آگے آگے ہو سامنے کاشی بھائی سامنے سامنے دیکھیں بس کاٹ دے کاٹ نالی تاڑیاں مار دے 1 2 3 دعا کرا دیجیے ترازو تے مورا ترازو تے مورا ترازو تے مورا ترازو تے مورا. چلو جی لیب اٹھاؤ جی. کامیابی عطا فرما یا اللہ ان چور لٹیروں سے جان ہماری چھڑوا یا اللہ سراج الحق کی قیادت میں پاکستان کو اسلامی اور خوشحال پاکستان بنا یا اللہ کاشف چودھری صاحب جن کا آج یہاں دفتر کا افتتاح ہوا ہے یا اللہ ان کو حلقہ N47 میں کامیابی عطا فرما. اس حلقے کی تمام مرد و خواتین نوجوان بچے بوڑھے کاشف چودھری کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں یا اللہ اس کے نتیجے میں بھرپور اور بھاری لیڈ سے کامیابی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین. کاشف صاحب کی گفتگو اندر ہوگی جی اندر آ جائیں. ہم میڈیا کے تمام دوستوں کا شکر گزار ہیں وہ ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے. آج ہمارے N47 کے امیدوار رائے قومی اسمبلی محترم کاشف چودھری صاحب کے اس انتخابی دفتر کا افتتاح تھا. تو میں گزارش کروں گا محترم کاشف چودھری صاحب سے کہ وہ اس موقع پر آپ سے مخاطب ہوں. الحمدللہ سب سے پہلے تو میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے تو میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمیشہ ہماری دعوت پر تشریف لاتے ہیں اور ہمارے موقف کو اپنے چینلز اور اخبارات کے ذریعے پابندیوں اور قدغنوں کے ماحول میں قوم تک حق اور سچ کی آواز کو پہنچانے کا اپنا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. میں شہر بھر سے آئے ہوئے اپنے نوجوان ساتھیوں مختلف طبقات کے نمائندوں سول سوسائٹی تاجروں اقلیتوں اور برادریوں کے تمام عہدیداران اور نمائندوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس مختصر نوٹس پر دفتر کی اس افتتاحی تقریب کے اندر تشریف لائے ہیں.
इस वक्त मेरे हमरा इफरानुल्लाह भट्टी शहर इस्लामाबाद के नौजवानों के कायद, शहर के तालीमी इदारों की तंजीमों के कायद जनाब सैयद तसव्वुर अब्बास काज़मी, इसी तरीके से मेरे हमरा इस शहर की अक़लियती बिरादरी और जमात इस्लामी पाकिस्तान के मखसूस नशिस्त पर कौमी असम्बली के उम्मीदवार जमील खोखर साहब, इसी तरह जनाब शिराज भट्ट साहब, इस्लामाबाद होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब इमरान मलक साहब, इसी तरह शहर इस्लामाबाद की देही इलाकों से बिरादरियों के सरबराहान जनाब राजा सज्जाद कियानी साहब, चौधरी अफजल साहब, गुलाम सरवर तबस्सुम साहब और दीगर बहुत से ज़िम्मेदारान सजाद अब्बासी साहब, आमर बलोच साहब, दीगर बिरादरियों और इलाकों के नुमाइंदगी करने वाले तमाम दोस्त अहबाब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अन्य 47 के अंदर इस वक्त एक ही आवाज़ और फ़िज़ा है कि अब यहाँ पर ना तीर चलेगा, ना शेर चलेगा, ना आज़ाद चलेगा, अब यहाँ तराजू का राज होगा और इस शहर के अंदर अदल और इंसाफ का निज़ाम आएगा। ये शहर इस्लामाबाद जो वसाइल से मालामाल शहर है, इस शहर इक़्तिदार को इन पार्टियों ने जो 76 सालों से इस मुल्क पे हुक्मरान हैं, उन्होंने मसाइलिस्तान बना दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसको इस शहर के अंदर मेयरशिप करने का मौका भी मिला, उसके नुमाइंदे यहाँ से वफाकी वज़ीर भी रहे, लेकिन क्या कहें उन नुमाइंदों का कि जिनके नुमाइंदे बनने के बाद टेलीफोन बंद हो गए, लोगों के लिए मिलना मुश्किल हो गया, लोग उनके डेरों पर घंटों इंतज़ार करते रहे और उन्होंने इस शहर में तामीर और तरक्की का कोई काम नहीं किया। इस शहर के अंदर इस सन 47 के अंदर आज भी शहर के रहने वालों के बच्चे मेयारी तालीम से महरूम हैं। इस शहर के लोगों को सेहत की बाइज़्ज़त सहूलतें दस्तयाब नहीं। इस हल्के के अंदर पीने का पानी पूरे हल्के का सबसे बड़ा मसला है। इस हल्के के अंदर टूटी हुई गलियां, कच्ची गलियां, नापुख्ता सड़कें वो हुक्मरानों की कारकर्दगी का मुंह चढ़ाती हैं। इस हल्के के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारी कच्ची आबादियों के अंदर तो ये हालत है जैसे वहाँ पर इंसान ही ना बसते हों। इस शहर के देहात के अंदर, पूरे देहातों के अंदर कहीं पर ना ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, ना वहाँ पर बिजली और पानी का कोई निज़ाम है। बिजली और गैस के मीटरों पर सियासत की जाती है। आज भी वफाकी दारुल-हुकूमत में ऐसे इलाके हैं जहाँ लोग बिजली और गैस की बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। इसी हल्के के अंदर यहाँ पर नौजवानों के लिए खेलों के ग्राउंड मौजूद नहीं, पार्क मौजूद नहीं, ख़वातीन के लिए बाइज़्ज़त तरीके से ज़िंदगी गुजारने का इंतज़ाम मौजूद नहीं, कब्रिस्तान तक की सहूलतें मुयस्सर नहीं। ये वो इस्लामाबाद है कि जिसके बारे में पूरा मुल्क ये सोचता है कि यहाँ तो वसाइल से माला माल है, यहाँ के लोग तो खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल G62 के अंदर इसी शहर के अंदर गैस लीकेज से धमाका हुआ, जिस धमाके के अंदर एक मेरी बेटी, एक माँ फौत हो गई और वो सुई गैस के महकमे का MD 68 लाख रुपया इस गरीब मुल्क के टैक्स के पैसे से तनख्वाहें लेता है जो गैस लीकेज को बंद नहीं कर सकता। वो तबका इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। और इसी शहर के अंदर इन दिनों के अंदर परसों I9 के एक नौजवान, 25 साल नौजवान को 0 पॉइंट और शक्करपड़ियाँ के दरमियान गोली मारकर शहीद कर दिया गया। उसके बच्चे सवाल करते हैं इक़्तिदार में रहने वाले हुक्मरानों से कि इस शहर को अमन व अमान क्यों नहीं दे सके, ये सेफ सिटी क्यों नहीं बन सका, यहाँ अरबों रुपए से लगाए गए कैमरे आखिर क्यों नाकारा हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों और मीडिया के साथियों, इसलिए इस शहर के लोगों की अब यही आवाज़ है कि अब यहाँ पर अमानत और दयानतदार हुक्मरान और नुमाइंदे आएंगे और जमात इस्लामी ने इस शहर के लिए एक पूरा मंशूर दिया है। हम इस शहर की हर के इक़्तिदार में आएंगे, इस शहर के अंदर इंतज़ामी और माली तौर पर खुद मुख्तार बल्दियात का इलेक्शन करवाएंगे। निचली सतह पर मुंतखब नुमाइंदों को ये इख्तियार देंगे कि वो इस शहर के मसाइल को
गली महल्ले की सतह पर हल करवाएं। फिर ये शहर कि जो एक सूबे का दर्जा रखता है, जहाँ पर हाई कोर्ट मौजूद है, जहाँ चीफ कमिश्नर मौजूद है, इस शहर को हम सूबाई स्टेटस दिलवाएंगे। इस शहर का अपना वजीर आला होगा, इस शहर के अपने MPAs होंगे। यहाँ पे एक सूबाई बाइख्तियार गवर्नमेंट बनेगी जो इस शहर के लोगों के मसाइल को हल करेगी। हम पूरा प्लान दे चुके हैं कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर, शहर हो या देहात, वहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल बनेगा। हर यूनियन काउंसिल की सतह पर बेसिक हेल्थ यूनिट वो कायम किया जाएगा। बाराको और तरामड़ी के अंदर हम बड़े अस्पताल बनाएंगे। कम्प्लेक्स अस्पताल को अपग्रेड करते हुए कई हजार बेड का अस्पताल जो इस शहर के लोगों को सर्विसेज देगा और उसकी निजकारी के अमल को भी नहीं होने देंगे। इसी तरीके से इस शहर के अंदर, इस शहर के वसाइल, उसको इस शहर के लोगों पर खर्च करेंगे। इस शहर का कोई गांव, देहात और आबादी ऐसी नहीं होगी जहां गंदगी के ढेर हों, जहां बदबू और तापन हो, जहां खंडरातनुमा सड़कें हों। और ये शहर एक जदीद तरक्की याफ्ता शहर बनाएंगे। इस शहर के अंदर नौजवानों के लिए मेडिकल कॉलेज, इस शहर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, इस शहर की तालबात के लिए खवातीन यूनिवर्सिटी कायम करेंगे। इस शहर के नौजवानों को रोज़गार देने के लिए हमने ये फैसला किया है कि इस शहर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शहर बनाएंगे, इस शहर को एक्सपोर्ट सिटी बनाएंगे, इस शहर को हम सनती शहर बनाएंगे जहाँ हज़ारों नौकरियाँ इस शहर के अंदर दस्तयाब होंगी। इस वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर 50 जगहों पर हम सियाहती पॉइंट आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इस शहर को एक इंटरनेशनल टूरिस्ट सिटी बनाएंगे जहाँ दुनिया भर से सियाह आएंगे और इस शहर के आमदन में भी इजाफा होगा और यहाँ के नौजवानों को रोज़गार के मौके भी मुयस्सर होंगे। वफाक की तमाम नौकरियों के अंदर इस शहर के लोगों को सिर्फ स्केल 4 तक की नौकरियां नहीं, वफाक और चारों सूबों के अंदर वफाक के नौजवानों के डोमिसाइल पर नौकरियों का हक इस शहर के नौजवान को दिलवाएंगे। इस शहर की खवातीन के लिए दस्तकारी सेंटर, कम्युनिटी सेंटर्स, प्ले ग्राउंड्स, हेल्थ जिम कायम करेंगे। गर्ज हम इस शहर के लिए एक पूरा ऐसा मंशूर दे चुके हैं कि जो इसके नतीजे के अंदर CDA जो करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस शहर की पुलिस जो शहर के लोगों को सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। इस शहर के इदारे कि जिनकी बदअहली ने, जिनकी बदहाली ने इस शहर को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है, उन सारे इदारों को हम अवामी नुमाइंदों के ज़रिए और अवामी नुमाइंदगी को उसका वहाँ पर पहुँचाते हुए उन इदारों की सिमत को दुरुस्त करेंगे। ये वफाकी दारुल हुकूमत एक ऐसा दारुल हुकूमत होगा जहाँ पर कोई शख्स परेशान हाल नहीं होगा। हम इक़्तिदार के अंदर आएंगे इस शहर के मसाइल के साथ साथ इस शहर को जदीद तरक्की याफ्ता, खूबसूरत, सरसब्ज़ो शादाब और रोज़गार का शहर, 100% तालीम का शहर, हर शहरी के लिए सेहत की सहूलत का शहर, सनतों और तिजारत का शहर बनाने के साथ साथ हम इस पाकिस्तान को एक आज़ाद, खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान की दाखिला पॉलिसी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की माशी पॉलिसी, पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसी, पाकिस्तान की तहजीबी और सकाफती पॉलिसी वो अमरीका की ग़ुलामी, IMF की डिक्टेशन पर नहीं चलेगी। एक आज़ाद इलामा इकबाल के ख्वाबों और कायदे आज़म की जिद्दोजहद का पाकिस्तान बनाएंगे कि जिस पाकिस्तान के अंदर सूद के निज़ाम मईशत का खात्मा करेंगे। हम यहाँ पर ज़कात और उशर का निज़ाम, मुनसिफाना टैक्सेस का निज़ाम लाएंगे और ये टैक्स का 7400 अरब रुपया ये सूद की अदायगी में जाने की बजाय इस कौम के ऊपर खर्च होगा। करप्शन का रास्ता बंद करेंगे, इदारों को बाइख्तियार बनाते हुए, सियासी मुदाखलत से आज़ाद करते हुए, इदारों को रियासत के इन सियासतदानों
इन 50 घरानों और 300 चेहरों के कब्जे और गलबे से निकालते हुए इदारों को कौम की खिदमत पर मामूर करेंगे। पाकिस्तान का हर इदारा जो मेरे टैक्स गुजार के टैक्स से तनख्वाह लेता है वो हुक्मरानी नहीं करेगा, वो लोगों को ब्लैकमेल नहीं करेगा, वो रिश्वत और करप्शन का बाजार गर्म नहीं करेगा, बल्कि वो इदारे हम कौम की खिदमत और कौम के मसाइल को हल करने पर मामूर करेंगे। और ये सलाहियत हम इसलिए रखते हैं कि हमारे दामन पर कोई माली और इखलाकी धब्बा नहीं, हमारी कोई फाइल नहीं जिसकी बुनियाद पर हमें ब्लैकमेल किया, डराया और धमकाया जा सके। और हमारी तारीख इस बात की गवाह है कि इस शहर के अंदर हमने मसाइल को हल करने की तारीख रकम की है। पीने के साफ पानी से लेकर इस शहर में तामीरात की पाबंदियों के खात्मे से लेकर बिजली और गैस के मीटर्स पर पाबंदी से लेकर फीसों में इजाफे से लेकर तालीमी इदारों की बंदिश को खुलवाने से लेकर पुलिस के मजालिम और दीगर इदारों की चीरा दस्तियों से लेकर हमने हर मामले पर सिर्फ आवाज़ बुलंद नहीं की, एहतजाज किए, धरने दिए, सड़कें ब्लॉक की, GM सुई गैस से लेकर पुलिस के हाजिर सर्विस अफसरान पर ज्यादतियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा के शहरियों को इंसाफ दिलाया। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अपनी इस माजी की कारकर्दगी की बुनियाद पर हम इस शहर से इंतखाब जीत रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हवाएं ये कह रही हैं और उन्हीं हवाओं की बुनियाद पर आज ये पोजीशन हो चुकी है कि इस शहर की ताजर बिरादरी, इस शहर की सिविल सोसाइटी की तंजीमें, इस शहर के सरकारी मुलाजमीन, उनकी तंजीमें, उनकी CBA यूनियन वो हमारी हमायत के फैसले और ऐलानात कर चुकी हैं। यही नहीं, इस शहर के प्रोफेसर, इस शहर के डॉक्टर, इस शहर के वकला की तंजीमें और उनके नुमाइंदगान हमारी हमायत के फैसले कर चुके हैं। इस शहर की उलमाए कराम, पीराने तरीक़त, मशाइख़ आज़म जहाँ वो हमारी हमायत के फैसले कर रहे हैं, वहीं पर अक़लियती बिरादरी के पास्टर साहिबान, फादर साहिबान और उनके बिशप भी हमारी हमायत के ऐलानात कर रहे हैं। जही इलाकों के नंबरदार और शहर की तमाम बिरादरियाँ वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर तराजू की जीत और तराजू की हमायत के फैसले कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस सन 47 के अंदर एक ही फिजा है कि ना तो शेर, ना तीर, ना आज़ाद। और आज़ाद के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बैंगन और कंप्यूटर और अलमारियाँ जिनको दी गई, अगर कौम उनको वोट देने की गलती करेगी तो फिर जहांगीर तरीन का जहाज़, जरदारी का पैसा, शरीफों का सरमाया और जबर की ताकत उनको अपने कदमों पर नहीं खड़ा रहने देगी। इसलिए अब अगर अपने वोट का कौम को तहफ़्फ़ुज़ करना है तो उसका एक ही रास्ता है कि तराजू को वोट दिया जाए। तराजू आएगा तो इस मुल्क से जबर के निज़ाम का खात्मा होगा, अदालतें इंसाफ देंगी, दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम ख़त्म होगी, माशी मसावात कायम होगी और एक खुशहाल फलाही पाकिस्तान के सफ़र का आगाज़ होगा। और वो फलाही पाकिस्तान जहाँ पर जमात इस्लामी की हुकूमत के नतीजे में हम बेरोज़गार को बेरोज़गारी अलाउंस, बूढ़े को बुढ़ापा अलाउंस, पैदा होने वाले बच्चे की माँ को वजीफ़ा, तालीम और सेहत रियासत के ज़िम्मे और तहफ़्फ़ुज़ और छत रियासत देगी। और वो इस्लामी फलाही और खुशहाल पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करेगा। और उस पाकिस्तान के नतीजे के अंदर कश्मीर की आज़ादी का सूरज तलू होगा, फ़लस्तीन में इसराइल के मज़ालिम का ख़ात्मा होगा। और ये रिवायती सियासी पार्टियाँ, इनमें तो इतनी हिम्मत नहीं कि आज अहले फ़लस्तीन की मदद का, उनकी हमायत का एक बोल भी बोल सकें। ये शरीफ, ये जरदारी, ये आज अहले फ़लस्तीन के लिए इनकी ज़बानों पर ताले पड़े हैं। क्यों? अमेरिका की ग़ुलामी से, IMF की मदद से ये इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जमात इस्लामी ने अब इस कौम से इत्तेहाद किया है और ये कौम तराजू को वोट देकर कामयाब करेगी और इन शरीफों, जरदारियों, इन जागीरदारों और सरमायादारों से जान छुड़वाते हुए
इस पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाएंगे जहाँ कोई भूखा और प्यासा नहीं होगा, और जिस पाकिस्तान में कोई माँ बिजली के बिल के लिए खुराक के हाथों मजबूर होकर अपने समय अपने बच्चों को खुदकुशियाँ नहीं करवाएगी, और जिस पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल को देने के लिए मर्द अपने गुर्दे और ख़वातीन अपनी बालियाँ नहीं बेचेंगी, और जिस पाकिस्तान के अंदर घरों में बहनें और बेटियाँ जहेज़ के इंतज़ार में बैठी नहीं रहेंगी, और जिस पाकिस्तान के अंदर इंसाफ मरने के बाद नहीं मिलेगा, ज़िंदगियों के अंदर मिलेगा। आइए उस खुशहाल और रोशन पाकिस्तान के सफ़र के लिए तराजू का साथ दीजिए। जीतेगा इस बार, जीतेगा इस बार, जीतेगा इस बार, जीतेगा इस बार। बहुत शुक्रिया जनाब शराब साहब के साथ जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं अपने तमाम दोस्तों के साथ, अपने अहलो अयाल के साथ काजी चौधरी साहब की भरपूर हमायत का ऐलान करता हूँ, और इंशाअल्लाह इलेक्शन में कैंपेन में भरपूर सपोर्ट का भी ऐलान करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं G62 से ही बिलोंग करता हूँ जी, और 50 साल से हम इधर रह रहे हैं, और 35 साल से हमारा G7 में कारोबार है। तो इधर के जो हमारे एलए मोहल्ला हैं G62, बल्कि पूरा G6 में कहूँगा, पारा मार्केट भी सारी काशिफ भाई के साथ है, G7 मरकज़, तारा मार्केट, ये सारी मार्केट है इंशाअल्लाह ताला काशिफ भाई की क़यादत के अंदर यूनाइट है, और इनको इंशाअल्लाह वोट देके इन 2 सेक्टर से हम भरपूर कामयाबी दिलवाएंगे। सवाल अगर हो काशिफ भाई, NF दही और शहरी दोनों इलाकों पर मुश्तमिल है। शहरी इलाकों में तो आपकी कैंपेन बड़ी अच्छी है, तो दही इलाकों में कैसा रिस्पॉन्स है? देखिए, मैंने तो दही इलाके के हवाले से आपको बताया है कि दही इलाके के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे 4 से 5 मुख्तलिफ बरादरियाँ बड़ी बड़ी कार्नर मीटिंग्स के अंदर, दही इलाके से पीराने तरीक़त, दही इलाके से नंबरदार, और दही इलाके से वो लोग के जो वोट की ताकत रखते हैं, और यही नहीं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से तल्लक रखने वाले लोग मेरी ताजर सियासत और खिदमात की वजह से वो भी इसलिए हमायत के ऐलानात कर रहे हैं, पार्टियों से बालातर होकर, तस्सुबात से बालातर होकर, अपनी वाबस्तगियों से बालातर होकर इसलिए मेरी हमायत कर रहे हैं कि मेरी 30 साल की यहाँ पर अवामी ज़िंदगी लोगों के सामने है कि हम लोगों के अंदर रहे हैं, हमने जहाँ मसाइल हल करवाए, हम सड़कों, चौकों और चौराहों में ज़िंदगी का एक सफ़र लोगों के साथ तय कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह देहात के 100% पोलिंग स्टेशन हम जीतेंगे, जीत रहे हैं। और ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि वोट चोरी इस शहर का हमारा कारकुन, हमारे दोस्त, हमारे ताजर, हमारी सिविल सोसाइटी और हमारे हज़ारों वर्कर कोई वोट चोरी नहीं होने देंगे। मैं काशिफ भाई की बात में एक ऐड करूँगा बात कि अभी आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन को भी देखा होगा, और जमात इस्लामी वाहिद वो जमात है जिसमें एक प्रॉपर इलेक्शन होते हैं। बाकी किसी में इलेक्शन नहीं होता, सिर्फ सिलेक्शन होती है कि जी ये शरीफ बरादरी है, ये सिर्फ इसका ही जनाब सदर वज़ीर आज़म बन सकता है जी, और कोई नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, लेट हो रहा है।